अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको एक ऐसी दिलचस्प कहानी दिखाएंगे जिसमें पिछले दिनों मीडिया पर उसका बड़ा वावेला था। मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को हनी ट्रैप करके उनको ब्लैकमेल करते हैं और लाखों रुपए की रकम बटोरते हैं। सब्ज़ादार के इलाके में इन ड्राइव का ड्राइवर एक पैसेंजर खातून को लेकर जाता है और उसको ज़्यादती का निशाना बनाता है। मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन दर हकीकत ये झूठ पर मबनी सारा मामला होता है। पुलिस उस मुकदमे के बाद इन्वेस्टिगेशन करती है तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस को ये मालूम होता है कि ये एक मुनज़्ज़म ग्रोह है जो लोगों को हनी ट्रैप करने के बाद उनसे लाखों रुपए की रकम वसूल करता है। ये ग्रोह गिरफ़्तार हो चुका है और इसके मुतासरा लोग क्या कुछ कहते हैं, ये सब कुछ हम आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने जिस तरह से बताया कि शहर लाहौर में हनी ट्रैप करने वाला एक गिरोह मुतहरिक है। किस तरह से लोगों को हनी ट्रैप किया जाता है उसका ही एक मुतासरा शख्स हमारे साथ है। किस तरह से इन्होंने वारदात की और फिर किस तरह से पुलिस की गिरफ्त में ये आया, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बताओ जी, की नाम है? मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल साहब की होया सी? मेरे एक दोस्त ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ठीक है, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ठीक है, ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अच्छा। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। किन्ने नंबर दिता? दोस्त ने? ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਦੀ ठीक है। ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ठीक है, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਬੈਕ ਰਿੰਗ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਪੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਨਾ ਨੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੇਵਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 20 ਕਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੱਕ ठीक है, ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ? ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਮੀਨਾ ਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ 2-3 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਪੌੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ठीक है, ਤੋ ਉਹ ਵੀ ਸਬਜ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ठीक है, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰੋ 8-8:30 ਵਜੇ ਨਾ 9 ਵਜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਪ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਫੜਾਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਸਮਝਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਨਾਲ ਲਾਪੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਕਮਰਾ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਚਾਰੇ ਜਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਬੋਤਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗਲਾਸ 'ਚ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਅਵਾਰਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ठीक है, ਸਾਨੂੰ ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸੋਫਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੂਹਾ ਖੜ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਆਪੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੈਮਿਲੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਬਜ਼ਾਦਾਰ 'ਚ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ 10 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਠਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੱਲ ਨਿਕਾਹ ਹੈ, ठीक है, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਕਰੋ। ठीक है, ਉਹ ਬਾਜੀ ਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਕਹਿਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਲਝਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ। ਉਹ ਜੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, 50,000 ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇ। अच्छा। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? 25,000 ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ठीक है, ਮੈਂ ਕਿਹਾ फिर डर गए हो? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਠਮਰ ਗਿਆ ਨਾ। ठमर गए, ठीक ਮੈਂ है, ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ 10 ਜੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੇਰਾ। ठीक हो गया। अच्छा, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ? ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਸੀ, 3 ਜੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਹਨ, 2 ਜੀ ਉਹ ਹਨ, 6 ਜੀ ਹਾਂ ਟੋਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਅਦ 3 ਜੀ ਹੈ, 3 ਮਰਦ ਆ ਗਏ, 9 ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ। ठीक है, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਮਰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਘਰ ਹੈ। ठीक है, ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਕਤ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ATM ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਤੋਂ ਕਢਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ
ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਲਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਤੀ 5000 ਲਿਆ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਥਾਣੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਅੱਧਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਦਰਖਾਸਤ ਸੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਊ की ਹੈ। दरख्वास्त दी थी उन्होंने? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਤਾਵਣ, ਫਿਰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਦੇਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। 50,000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਲਿਆ ਕੋਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ੀਦ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਿਕਾਲ ਕਰਤਾ ਸਾਫ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਕਾਲ ਆਈ। ठीक हो गया। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ये थे जी इस्माइल साहब, जिन्होंने अपने दोस्त के लिए, अपनी एक करीबी दोस्त जिसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था, उसकी दूसरी शादी करने के लिए उनसे रब्ता किया, और जब रब्ता किया तो वो ख़ुद इनके पास किसी जगह पे सब्ज़ादार में आए और इनके साथ इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की और 25,000 रुपये की रकम जो है वो इनसे वसूल कर ली, और उसके बाद इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त भी थाने में दे दी। इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं कि उनको कैसे ये हनी ट्रैप करते रहे। हनी ट्रैप के सिलसिले में एक बड़ा ही और अहम इंकशाफ अपने प्रोग्राम में हम करते हैं कि कुछ रोज़ पहले एक इन ड्राइव के ज़रिए जो है वो ख़ातून गाड़ी में जाती है और उसकी जानिब से मुकदमा दर्ज किया जाता है कि उसको इन ड्राइव का ड्राइवर जो है ज़्यादती का निशाना बनाकर फ़रार हो जाता है, जिस पर ये इल्ज़ाम लगा, जिस पर ये मुकदमे का मुलजिम बना, वो असल में मज़लूम था। नौजवान हमारे साथ है, इससे वो कहानी सारी जानते हैं कि कैसे वो गाड़ी लेकर जाता है और किस तरह से ये हनी ट्रैप होता है, ये इसकी ज़ुबानी जानते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरासत अली है। फरासत जी। अच्छा फरासत, क्या हुआ था? तुम्हारी तो बड़ी ख़बरें चर्चे में रहीं कि इन ड्राइवर ने जो है वो एक ख़ातून को जो है ज़्यादती का निशाना बनाया और फ़रार हो गया। सर ज़्यादती का निशाना मैं खुद बना हूँ, वो क्या बनना है। मैं ये तकरीबन कोई 1 साल पहले ना मैं डिफेंस राया में काम करता था। ठीक है। उधर मतलब कि जिस कोठी में मैं काम करता था तो उधर ना एक दूसरा बंदा किसी दूसरी मैडम को लेके आता था। ठीक है। उससे वैसे ही दुआ सलाम हो गई, नंबर चेंज हो गया, तो उसने ना मुझे 1 दिन पहले ना, बीच में जब कभी कभी बात होती रहती थी, उसे 1 दिन पहले फ़ोन किया कि यार ऐसे ऐसे मेरी ना रिश्तेदार आ रहे हैं, तो उनको आपने ना जिधर कहेंगे छोड़ देना, जो आपके पैसे बनेंगे मैं आपको दे दूँगा। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। ठीक उससे है। अगले दिन ही उसकी कॉल आती है कि यार उनको ना वो कच्चा जेल रोड से आपने पिक करना है। ठीक है। साथ में वो लड़की की मुझे कॉल आती है कि मैं इस टाइम ना कच्चा जेल रोड पे खड़ी हूँ। मैं कहा ठीक है। कितनी उम्र थी उस लड़की की? उम्र कोई 27-28 साल थी। 27-28 साल। जी। कॉल आपको खुद करती है? कॉल करती है, कोई राइड बुक नहीं करवाई उन्होंने मेरे से। ठीक है। ठीक है, कॉल करती है। मैं कहता हूँ मैं उस टाइम लास्ट राइड गुलबर्ग में ड्रॉप की है। ठीक है। मैंने कहा मैं गुलबर्ग में हूँ, मुझे तकरीबन कोई आधा पौना घंटा लगेगा, 8 को बजे का 9 बजे का टाइम था कि रश है। कहती चलें ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपका वेट कर रही हूँ। मैं जब उधर पहुँचता हूँ, मैंने उसको पिक किया है, उसके बाद उसने कहा कि मैंने जाना है सब्ज़ादार। ठीक है। ठीक है, मैं कहा चलें ठीक है। वो मेरे साथ बैठ जाती है। मैं जब सब्ज़ादार पहुँचता हूँ, उनको ड्रॉप करता हूँ, तो वो उधर कहते हैं कि आप मतलब कि 10 मिनट मैं उधर ही नीचे गाड़ी में बैठा रहता हूँ। 10 मिनट बाद आते हैं कि रमज़ान कह रहा है कि ये मेरा दोस्त भाई है, तो आप इसको पानी शानी पिलाएं। उतनी देर में मैं भी आ जाता हूँ, मैं आपको जो आपका बनता है वो मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। उस मैं घर के अंदर बैठ जाते हैं जहाँ पे लड़की जाती है? उस घर में कोई और भी होता है? उससे पहले एक लड़की बैठी होती है उधर। 2 लड़कियाँ होती हैं और आप होते मैं हैं? होता हूँ। मैं उनके बाहर सेन में बैठ जाता हूँ जाके। ठीक है। तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजरते हैं, 3 बंदे आते हैं जिनके पास 2 के पास पिस्टल था और एक वैसे ही था। ठीक है। वो आते सार ही मुझे मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है। मैं उनको पूछता हूँ कि भाई मेरा कसूर क्या है, मुझे कसूर तो बताओ। मेरी तो वो सुन ही नहीं ना रहे, मुझे मारी जा रहे हैं, कोई थप्पड़ मार रहा है, वो मेरे
बट मार रहे हैं कमर में वो पिस्टल के। ठीक है। मैंने उसको बोला कि भाई मुझे रमज़ान ने भेजा है, मैं इसको लेके आऊँ, मेरा कसूर तो बताओ। मतलब कि ऐसे करते करते ना उन्होंने घंटा डेढ़ हो गया ठीक है। मारते हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती मतलब कि उधर करवाया है। अच्छा, वो बंदे भी मौजूद होते हैं? सारे उधर 3 से 4 औरतें हो जाती हैं, अच्छा, ठीक है, और 3 बंदे हो जाते हैं उधर ठीक है। जो उधर मौजूद थे। करवा के बाद में उन्होंने मेरी वीडियो बनाई। वीडियो में ये बनाया कि वो आप मतलब कि इकरार करो आपने इधर किया है, ठीक अच्छा। है, उसकी आप मुझसे माफ़ी मांगो। ठीक है। उसके बाद वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारे ATM वगैरह किधर हैं। ठीक है। मैं कहा यार मैं तो बैंक यूज़ करता ही नहीं हूँ। उसने मेरी गाड़ी की चाबी ले के वो नीचे गया, उसने गाड़ी की तलाशी वगैरह ली है। मेरा पर्स पड़ा था, उसमें तकरीबन कुछ 6 से 7 हज़ार रुपया था। ठीक है। वो पर्स वगैरह, मेरे ID कार्ड, गाड़ी की कापी वगैरह ऊपर ले आता है, ठीक है, वो 6-7 हज़ार रुपया निकाल लेता है। उसके बाद वो कहता है कि भाई आप 5 लाख रुपया दें। अच्छा। 5 लाख देंगे तो आपकी मतलब कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप चुप करके चले। मैंने उसको बड़ा मैं कहा यार मैं तो गरीब बंदा मैं 5 लाख तुहानू कित्थों दांगा। उन्हें कहा जितों मर्जी करके दे वरना तेरे ते असीं FIR करवा दांगे। ठीक है। मतलब कि इस तो 5 लाख तो मतलब फिर 2 लाख ते आ गए कि 2 लाख रुपया दिओ जितों मर्जी करके दे तू 2 लाख रुपया। उस तो बाद इन्हां मेरे मोबाइल दे विच दोस्तां नूं कालां करवाइयां कि तू ना दोस्तां नूं कह कि मेरे दोस्त दी डिलीवरी है, मतलब मैं जिस दोस्त नूं कॉल कर रहा तो मैनू एमरजेंसी 50,000 रुपया चाहिए। मैं 3-4 दोस्तों को फोन किया कि यार मैनू ना ऐसा एमरजेंसी बन गई, मेरे दोस्त की डिलीवरी है। जिस तरह मैनू मतलब कि वो दस रहे हैं कि मैं उस तरह ही बयान दे रहा हाँ कि उन्होंने दस रहा कि मेरे दोस्त की डिलीवरी है तो मैनू 50,000 रुपया चाहिए। वो एक दोस्त ने यार कहता मेरे को 50,000 रुपया तो नहीं 5,000 रुपया अकाउंट च है, उन्हें मैनू ट्रांसफ़र करता अकाउंट च। उस तो बाद उन्हें फ़ौरन ही अपने मोबाइल च मतलब कि सेंड कर लिया। उस तो बाद फिर मारना शुरू करता मैनू, ठीक है, कि तू 50,000 रुपया दे। उस दोबारा रमज़ान नामी बंदे की मेरे नाल गल करवाते हैं कि तू इहदे नाल गल कर। मैं उहदे नाल गल करना, मैनू कहता है कि मैं ना पिंड के नंबरदार नूं फ़ोन किया, उन्हें तेरी ना जिम्मेदारी चुकी है, तू इन्हों घरों 50,000 रुपया लिया के दे। ठीक है। मैं कहा ठीक है, मैनू किसी तरीके नाल तुसीं जान दिओ, मैं तुहानूं 50,000 रुपया लिया के देना। उस तो बाद तकरीबन 9 बजे तो लैके राती 2 बजे तक उन्हें मैनू राती बन्नी रखा उत्थे। अच्छा। 2 बजे तक मतलब कि मारते रहे ने, फुल टॉर्चर करते रहे। वो पिस्टल का चैंबर मारते सी कि तेनों हुणे इत्थे मार देना। वो जिहड़ियां उन्हां दियां माइयां सी उन्हां दे सिर दुपट्टा रखदियां सन, ना मुंडे नूं ना मारिया जे, मतलब कि फुल थ्रैट करता उन्हां मैनूं। अच्छा। कि मैनूं समझ नहीं आ रही कि मैं करां की। जिस तरह 2 बजे उन्हां मैनूं मतलब कि छड्डिया, उस तो बाद मैं सीधा थाने चला गया। थाने जाके मैं सारा वकूआ दस्सिया कि मैंने यह वकूआ होया। उस तो बाद उन्होंने मैं कॉल की है कि सर मैं पैसे लैके आ रहा हूँ। उन्हें कहा ठीक है, मतलब कि वो सर दे वो जिहड़े SI साहब उन्होंने सामने कॉल की कि सर मैं पैसे लैके आ रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। उस तो बाद तकरीबन कोई 3 बजे तो लैके 12 बजे तक असीं थाने ही बैठे रहे हैं कि साडा हुआ। उस तो बाद बारिश वगैरह का उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई सी, थाने की लाइट वगैरह ऑफ सी, मतलब कि FIR साडी वो नहीं हो सकी, दर्ज नहीं हो सकी। ठीक हो। सानू ना 3-4 घंटे का टाइम देगा, तुसीं 3-4 घंटे बाद SHO साहब आएंगे तो और सुनिया पुलिस है भी कहती रही कि तू झूठ बोल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। मैं जिन्हों सर सब तो पहला असीं उत्थे ASI साहब नूं दस्सिया, वो कहंदे कि तू झूठ बोलना है, इंज हो ही नहीं सकता, ठीक है। बाद जो गुलाम रसूल साहब उत्थे सब इंस्पैक्टर साहब उन्होंने मैं दस्सिया, मैं कहा सर मेरे नाल वाक़या होया, मैं तुहाडे कोल आ गया वां, जो भी तुसीं उन्होंने एक दफ़ा जाके रिट ते करो, उन्होंने पुछो तो सही कि की माजरा है। ठीक हो। वो मतलब कि रिट करन नहीं गए, रस्ते जो वापस आ गए उन्होंने, मतलब कि उन्होंने मैनू देख लिया। अच्छा। रस्ते जो वापस आ गए दोबारा उन्होंने जो असी रिट करन गए हैं, रिट नहीं की, मैं 4 मुलाजमान के नाल अगे गया वहाँ। उन्होंने देख लिया? हाँ देख लिया कि पुलिस लैके आ गया। ठीक है। वो दरवाज़ा ही नहीं खोलिया? दरवाज़ा नहीं खोलिया। उस तो बाद तकरीबन जो सानू जवेद अली SI साहब सन उत्थे, उन्होंने सानू 3 ਤੋਂ 4 घंटे का टाइम दिता कि साहब आएंगे तो तुहानू कॉल करांगे, फिर तुसीं थाने आ जाओ। असीं दोबारा जो 3-4 घंटे बाद गए हैं तो वो जवेद अली SI साहब मिले ने, उन्होंने कहा कि तेरे ते FIR हो गई। मैं क्या सर मेरे ते FIR किस तरह तुसीं कर दी थी, मैं तो तुहाडे कोल रात 3 बजे का बैठा हाँ, 12 बजे तक बैठा रहा हाँ, तो तुसीं आप ही मैनू टाइम दिता है। यहाँ पे बड़ी दिलचस्प बात है जी इस नौजवान की कि इसके साथ जो भी मामला हुआ ये इसकी ज़ुबानी आपने सुना कि इसको ज़बरदस्ती ले जाया जाता है, फिर ज़बरदस्ती इससे जो कुछ भी होता है वो करवाया जाता है। फिर बाद में क्या होता है कि इससे रकम का जब मुतालबा किया जाता है तो रकम लेने के लिए वहाँ से उनके चुंगल से आज़ाद होके या मोहलत मांग के
कहीं निकलता है पैसे इकट्ठे करने के लिए, फिर ये चला जाता है पुलिस स्टेशन में। हस्बे मामूल जो हमारा रवायती पुलिस का कल्चर है कि पुलिस वाले इसकी बात पे यकीन ही नहीं करते हैं, और अगर यकीन करते ही हैं तो वहाँ पे लाइट नहीं थी बावजह बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से, लेकिन पुलिस इसकी बात पर मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं करती और इसको कुछ वक्त दे देती है कि कुछ देर के बाद या इतने बजे या इतने घंटे के बाद आना। जब ये वापस आता है, जिस कंप्लेन को लेकर ये रात भर वहाँ पे बैठा रहता है थाना सब्ज़ाज़ार में कि इसकी FIR दर्ज चले ना भी हो तो कम से कम उन मुलजमान को जिनको अब गिरफ़्तार किया है उनको वो पकड़ लेते और पकड़ के तफ्तीश करते तो शायद इस तरह के कई और लोग बच जाते, लेकिन पुलिस ने इसकी सच्चाई को झूठ समझा। फिर क्या होता है कि जब ये दोबारा अपने मुकर्रर वक्त पर थाने में जाता है तो इसी के ख़िलाफ़ 376 यानी कि जना की FIR इसके ख़िलाफ़ ही दर्ज कर ली होती है। एक तरफ एक मज़लूम के साथ जो जुल्म होता है उसके लिए ये FIR करवाने के लिए जाता है और पुलिस कान ही नहीं धरती इसकी बात पर, और जब ये वहाँ पे दोबारा पहुँचता है तो पता ही चलता है कि इसके ख़िलाफ़ FIR कट चुकी है। जो मुकदमे का मुद्दई बनने के लिए जाता है दोबारा जब वहाँ पर पहुँचता है तो ये मुलजिम बन चुका होता है। फिर इसके बाद क्या हुआ? सर इसके बाद जब उन्होंने मुझे बोला कि आपका FIR होगी, उसके बाद मैंने उधर 7 बजे 15 पे कॉल की CCP को दफ्तर, मतलब कि उधर से मुझे दोबारा कॉल आई। मैंने उनको सारा बबुआ बताया कि सर मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है। फिर उन्होंने मुझे CCP के दफ्तर बुलाया, उन्होंने मेरे साथ बहुत ताउन किया। ठीक है। फिर उन्होंने अरशद संधू साहब को बोला कि आपने ये केस, क्योंकि ये हमारी मीडिया पे देखें तो झूठा उन्होंने बगैर तहकीक के इन ड्राइव का बोल दिया कि इस बंदे ने ज़्यादती की है। ये नहीं बोला कि वो बंदा बेचारा सच्चा है, उसके पूछें तो सही उसका मसला क्या है। असल में जब FIR हो गई ना, जब मुकदमा, ये तो मुकदमा दर्ज करने वालों को सोचना चाहिए था कि वो मामले की नोयत को समझते, लेकिन ये SP साहब से भी सवाल करेंगे कि क्या इस तरह से होना चाहिए कि अगर कोई झूठा मुकदमा ही दर्ज करवाता है तो मुकदमा दर्ज फौरी तौर पे हो जाना चाहिए, बावजूद इसके कि यकीनन जो अमल इससे करवाया गया उसका मेडिकल भी आ सकता था, उसका सब कुछ हो सकता था, लेकिन गन पॉइंट पे सारा कुछ इससे करवाया गया, जान से मारने की धमकी देकर। ऐसा ही है सर? ऐसे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमें अरशद संधू साहब जो सब इंस्पेक्टर तफ्तीशी साहब हैं, मेरे लिए तो एक वो जो पहले वो मौलवी साहब भाई साहब हैं, वो तो समझो मेरे लिए फरिश्ता बन गया है। उनके साथ भी सेम यही स्टोरी की उन्होंने, इस्माइल साहब के साथ, मतलब कि पहले मेरे साथ किया फिर इस्माइल साहब के साथ किया। जब पुलिस वालों ने देखा कि ये बंदे बार बार ये FIR करवा रहे हैं, क्या वजह है, ठीक है, फिर उन्होंने तहकीक की और पूरा गिरोह पकड़ा उनका। ठीक है। उनमें से तकरीबन कुछ 6-7 वो बंदे थे और 6-7 औरतें थीं। ठीक है। वो पूरा गिरोह पकड़ा, फिर उन्होंने मतलब कि माना कि हमने ये सारा कुछ किया हुआ है, ये ज़्यादतियाँ की हैं इन बंदों के साथ, सारा कुछ ठीक हो गया। फिर आपकी बिल आखिर वो गिरोह पकड़ा जाता है, फिर आप ज़मानत कराते हैं या क्या होता है? अभी मतलब गिरफ्तारी हो जाती है आपकी? नहीं, गिरफ्तारी नहीं होती। गिरफ्तारी नहीं डालते, इल्तवा में रखते हैं जी। CCPO ने जो है वो थोड़ा सा एक्शन लिया होगा? बिल्कुल एक्शन लिया जो, तो उसके बाद फिर ये मामला बिल्कुल हुआ। ले जी, ये इन ड्राइव गाड़ी चलाने वाले नौजवान की असल कहानी ये थी, जिसमें इतना शोर मचा कि एक ड्राइवर पैसेंजर को लेता है, ख़ातून पैसेंजर को लेता है और उसको अपनी जगह पर छोड़ता है और वहाँ पर इसके साथ इसको ज़्यादती का उसको निशाना बनाता है। मीडिया पर भी ये बातें आती हैं, लेकिन हकीकत क्या थी हमने आपको इस नौजवान की ज़ुबानी सुनवाया और इसी में हम आपको बताएंगे कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी क्या कहती है। SP इकबाल इन्वेस्टिगेशन मुगीज़ साहब हैं जी हमारे साथ। आजकल एक जो पहले पार्ट में हमने आपको दिखाया कि हनी ट्रैप, कुछ ख़वातीन लोगों को फ़ोन कॉल्स के ज़रिए या राह चलते कोई टैक्सी में या रिक्शे में, ऑटो में, किसी जगह पे भी जो ख़वातीन मिलती हैं और वो मर्दों को बुराई के लिए उकसाती हैं और बाद में उनके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज करवा दिया जाता है, FIR दर्ज करवा दी जाती है, फिर उनसे
ब्लैकमेल करके उससे रकम हासिल की जाती है। इसी तरह के कुछ मुकदमात इकबाल टाउन डिवीज़न में सामने आए कि जो मुकदमे की मुद्दइया या मुद्दई खातून या मर्द थे, ये लोगों को हनी ट्रैप करके उनसे लाखों रुपया बटोरते थे। लाखों रुपए की रकम लूटने वाले गिरोह का इंकशाफ हुआ। फिर इकबाल टाउन डिवीज़न इन्वेस्टिगेशन ने इस पे इन्वेस्टिगेट किया तो एक गिरोह मंजर आम पर आया। जो मुतासरीन थे उनसे हमने आपकी बात करवाई, उनका क्या कहना था, लेकिन अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, किस तरह से इन्हें पता चला कि ये मुतासरा लोग जो हैं इनको लूटा गया है, इनको हनी ट्रैप किया गया है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, ये एसपी इकबाल टाउन इन्वेस्टिगेशन मुगीज़ साहब की ज़ुबानी जानते हैं। मुगीज़ साहब, हनी ट्रैप तो खलीलुर रहमान कमर साहब भी हो गए, फिर बड़े बड़े नाम हो रहे हैं, तो आपने भी एक ग्रोह जो है वो पकड़ा। इसकी पहले इन्वेस्टिगेशन बताइएगा कि क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या कुछ सामने आया और ये इनका तरीका वारदात क्या था? देखिए, ये इशू जो है एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो हम पहले भी अवेयर थे इस बारे में, लेकिन समटाइम्स जो है वो इंडिविजुअल एक्ट होता था जिसमें वर्गला के किसी को टारगेट करके बुलाया जाता था और उसके बाद एक्ट कमिट करने के बाद पैसे जो हैं वो उससे तलब किए जाते थे। लेकिन एक ये गिरोह की शक्ल में एग्जिस्ट कर रहा है, ये चीज़ हमारे सामने तब आई जब हमने एक FIR देखी जो हमारे थाना सफदरजंग में दर्ज हुई, जिसमें फ़ेक CNIC यूज़ किया गया मुद्दइया की तरफ से। उस CNIC के कवायफ हमने जब हासिल किए तो हमें पता चला कि उसी मुद्दत में मज़ीद भी केसेस हुए और हम उस एक्चुअल CNIC होल्डर तक पहुँचे जो उसके जिसकी मुद्दत में दीगर केसेस भी रिपोर्ट हो रहे थे। इसी तरह से हमारा एक दूसरा केस हुआ जिसमें हमने देखा कि गवाहान के तौर पे जो हमारे पास सामने आए वो कॉमन थे पर्सन्स जो पहली FIR में भी थे। ये वो चीज़ थी जिससे हमें शुबा गुजरा कि ये दोनों केसेस में शायद जो पीछे पार्टीज़ हैं या मुद्दई हैं वो एक ही हैं। जब हमने उनसे डिटेल्स लेने की कोशिश की तो देवर क्वाइट रिलक्टेंट, वो हमारे साथ उस तरह से शेयर नहीं कर रहे थे। मज़ीद हम जब उसको वर्कआउट करते गए और हमें मज़ीद केसेस उनके मिलते गए तो हमें ये आइडिया हो गया कि ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो लोगों को ट्रैप भी कर रहा है और एक सिमिलर नौयत के केसेस रिपोर्ट करवा रहा है मुख्तलिफ थानों में। हमारी इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट हुई तो इनिशियली ये मुद्दई थे, लेकिन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें ये मुल्ज़िमान महसूस होना शुरू हो गए। केसेस की जब तफसीलात हमने ली तो लाहौर के अलावा दीगर अज़ला में भी इन्होंने केसेस करवाए हुए थे। जो अनफोल्ड होते थे वो तरीक़ेकार इनका ये था कि किसी भी वेल ऑफ पर्सन को जो है वो टारगेट करते थे। एक हैंडलर था जिसने बाकी जो अरकान हैं गैंग के उनको इंट्रोड्यूस करवाया इस काम से। तरीक़ा वारदात यही था कि वो किसी भी पर्सन को टारगेट करते थे, उसके साथ किसी खातून की मुलाकात करवाते थे। उसके बाद उसको एक ख़ास इन्होंने घर लिया हुआ था जिसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ पहुँचने के बाद वो खातून अगर उसको कन्विंस कर पाए तो वो एक एक्ट कमिट कर लेते थे। अगर हमारी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये भी चीज़ सामने आई है कि गन पॉइंट पे और फोर्सफुली भी ये एक्ट कमिट करवाते रहे हैं। ठीक है। और इसके लिए जो कुछ इंजेक्शंस हैं प्रोहिबिटेड और मुज़र सेहत वो भी इस्तेमाल करते रहे हैं इस पर्पज़ के लिए। जब वो शख्स वो भी बरामद हुए? जी, वो जब शख्स पहुंच जाता था या वो एक्ट कमिट कर लेता था फोर्सफुली या उसको वर्गला के अगर वो एक्ट कमिट करवा लिया जाता था तो गैंग के बाकी मेंबर्स फ़ौरन वहाँ पे पहुँच जाते थे और उसके बाद जो है वीडियो भी रिकॉर्ड करते थे जिसको बाद में ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। कई इंसिडेंट्स जो हैं भाई हमारी तफ्तीश में 10 से 15 केसेस जिन्होंने तस्लीम किए हैं इस गैंग मेंबर्स ने जो ये मानते हैं। तमाम केसेस FIR की स्टेज तक नहीं भी पहुँचे। कई केसेस में सेटलमेंट पैसे लेने के बाद वो इनिशियल स्टेज पे ही हो जाती थी, लेकिन कुछ केसेस में जहाँ मामला एस्केलेट कर जाता था या इनको लगता था कि दूसरी पार्टी ना पुलिस को पहले अप्रोच कर ले तो उसकी FIR हो जाती, प्रीएम्प्टिव मेजर ये पहले उसमें FIR दर्ज करवा लेते थे। और तरीक़ाकार यही था कि उसके बाद एक हेफ्टी अमाउंट जो है रिसीव करने के बाद कंप्रोमाइज़ में जाके ये अपना पर्चा जो है वो खारिज करवा लेते। ठीक है। अच्छा मुगीज़ साहब, इसमें सबसे अहम किरदार पुलिस का भी है कि एक हनी ट्रैप करने वाला गिरोह जब किसी को ब्लैकमेल करता है, किसी से पैसों का तकाजा करता है, तो अगर उसने पैसे दे दिए तो उसके साथ सेटलमेंट कर लेते थे, फिर उसके बाद FIR भी दर्ज हो जाती है। तो FIR के लिए भी ये कोई रकम खर्च करते थे या इनकी कोई अच्छी सिफारिशें थी? तो इतनी आसानी से इनकी FIR, जना की FIR, 376 की FIR कैसे हो जाती थी? देखिए, ये जो ऑफेंस है ये सेक्सुअल ऑफेंसेस जो आते हैं ये बहुत ही सेंसिटिव नेचर के होते हैं।
और ये इस तरह के हैं कि इसमें डिनाइल ऑफ एफआईआर का तस्वुर भी नहीं हम कर सकते। अगर ये चीज़ कि फीमेल विक्टिम रिपोर्ट करती है गिवन द सेंसिटिविटी ऑफ द इशू, तो बहुत कम है कि पुलिस जो इसमें रिलक्टेंट हो। एफआईआर यही है कि एक वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है जो आपने, वी आर लीगली बाउंड कि हम उसको एज इट इज़ जिस तरह से वो कंप्लेनेंट बयान कर रहा है हम उसे दर्ज कर लें, और इट इज़ आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कि हम उस पर असल मेरिट्स पे पहुंचते हैं कि वो चीज़ क्या है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर में डिले ऐसे केसेस में नहीं होती, और पुलिस रेडिली जो भी इंफॉर्मेशन अगर विक्टिम प्रोवाइड कर रहा है उसमें वो हम रजिस्टर कर लेते हैं। इवन कोर्ट ऑर्डर के भी बगैर विक्टिम अगर आता है और ऐसी वो चीज़ रिपोर्ट करते हैं तो एफआईआर तो बेसिक चीज़ है जो है वो फौरी तौर पे कर ली जाती है। इस वजह से कोई ऐसी मतलब आईडी रजिस्ट्रेशन करवाने में वो सामने डिपार्टमेंट की या किसी और की वो नहीं आई। ठीक है। अच्छा मोगी साहब, इसमें कितने अरकान हैं, ख़वातीन कितनी हैं, एज कितनी है और मर्द कितने हैं, कितने लोग हैं टोटल इसमें? जो गैंग हमने अभी एप्रीहेंड किया है इसमें अभी 8 मेंबरान हैं, जिसमें से 4 मर्द और 4 ख़वातीन हैं। ये जो है वो 30 to 40 इनकी एज ब्रैकेट है जिसमें ये फॉल करते हैं। कुछ शादीशुदा हैं, कुछ जो है वो तलाक याफ्ता भी हैं। दूसरा जो मेल मेंबर्स हैं वो दीगर शोबों से वाबस्ता हैं, कोई अपनी मजदूरी इनके साथ इनकी कोई रिश्तेदारी है या सिर्फ ये एक वर्किंग रिलेशन? जो इनका आबाई इलाका है वो एक ही है, तमाम जो है बिलोंग करते हैं साहिवाल से। ठीक है। और ये रिश्तेदार भी हैं, और इनको जो है वो एक बंदे ने ये आइडिया कंसीव करने के बाद बाकियों को भी जो है वो इसी में इस्तेमाल किया और ये रास्ता उन्हें दिखाया। ठीक है। इनकी गिरफ्तारी पहले मुमकिन हुई है? कोई पहले पकड़े गए एफआईआर तो इन पे काफ़ी? जी बिल्कुल, ये इससे पहले जो है वो दीगर केसेस में भी जब ये मामला अनफोल्ड हुआ तो ये ऑलरेडी भी पकड़े जा चुके हैं। ठीक है। अच्छा मोगी साहब, आपकी इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें सामने आ गई। हनी ट्रैप लोग हो रहे हैं, जिस तरह से कोई इज़्ज़तदार लोग होते हैं जो अपनी इज़्ज़त से डरते हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं करते हैं। जिस तरह से इन्होंने बहुत सारे लोगों से पैसे ले लिए और उनके साथ सेटलमेंट कर ली। कुछ मैसेज दे सकते हैं आप हमारे देखने वालों को कि अगर आपको कोई हनी ट्रैप करे, मतलब लोगों को हनी ट्रैप कोई करे, तो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, लीगल वे किस तरह से अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? लोग डरते हैं कि हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। यकीनन गलती बहकना इंसानी फितरत है, हो जाता है, तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आप अपने तमाम मामलात में इंट्रैक्शंस में एक तो बेसिक एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको अपनानी चाहिए। अपना हल्का बाप जो है वो आप नॉन लोगों में ज़रूर रखें। आप जो बेसिक एहतियात आप लेते हैं किसी भी अनजान शख्स से मुलाकात करते हुए, तो आप ज़रूर मोहतात उसमें रवैया इख्तियार करें। आप जो अंडर एज ख़ास तौर पे हैं, बच्चे बच्चियां हैं जो अपने जॉब्स कर रहे हैं या एजुकेशन कर रहे हैं, वो ज़रूर अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते रहें अपनी मूवमेंट, जहाँ पे भी वो आना जाना हो, जिन लोगों से मिलते हैं वो आप जितना नॉन रखेंगे अपने मामलात में, आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, तो आप कम रिस्क पे होंगे कि इस तरह के इंसिडेंट्स आपके साथ हों। बिलफर्ज अगर इस तरह का इंसिडेंट आपके साथ हो जाता है तो इसको अर्ली रिपोर्ट करना ही सबसे बेहतर जो है वो वे आउट है, क्योंकि दूसरी ऑप्शन ये है कि आप ब्लैकमेल होते रहो उनके हाथों, किसी भी ऐसे गिरोह के हाथों, और आप परेशानी का शिकार रहें। उससे बेहतर है कि आप अर्ली रिपोर्ट करें जो भी इंसिडेंट है, और जितना अर्ली आप रिपोर्ट करेंगे आपकी वो जो इशू है वो रिड्रेस हो सकेगा। ठीक है। अच्छा मोगी साहब, जो इस तरह के केसेस में लोग शामिल होते हैं, मुलजिम जो होते हैं, क्या मैक्सिमम सज़ा हो सकती है और आप इनको कितनी सज़ा दिलवा सकेंगे कि कुछ अरसा इनका जेल में गुजरेगा? कोई एविडेंस ऐसे हैं, कुछ सबूत ऐसे हैं, कुछ शाहिद ऐसे हैं कि इनका लंबा अरसा टेन्योर इनका जेल में रहेगा? बिल्कुल, ये जो क्योंकि इसमें पैसे इन्होंने लिए हैं और वो एक तरह से अगवा भी तस्वुर होता है, और ये ऑफेंस जो है वो ATA के सेक्शंस भी अट्रैक्ट करता है। तो जब ATA के सेक्शंस अट्रैक्ट कर रहे हों और वो ATA कोर्ट से उसकी कॉग्निजेंस में आ जाता है मामला, तो फिर उसमें ऐसे केसेस में सज़ाएँ जो बहुत सख्त होती हैं, और ऐसे केसेस को प्रोसिक्यूट करना बड़ा टेक्निकल काम है। तो हमारी कोशिश होगी कि प्रोसिक्यूशन के साथ और अपनी लीगल एड लेते हुए हम इस केस को इस तरह से मजबूत बनाएं, इस तरह के एविडेंसेस इसमें कलेक्ट करें कि जिसमें मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सज़ा जो है वो दिलवा सकें। ठीक है। मोगी साहब, आखिर में एक सवाल है कि एक बहुत मशहूर केस हुआ सब्ज़ादार में, जो इन ड्राइव पे ख़ातून को जो है वो किया गया, उसकी क्या अपडेट हैं इस ग्रोह के साथ? उसका भी कोई कनेक्शन बनता है? बिल्कुल, जो सब्ज़ादार में इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था जिसमें अलेज किया गया था कि इन ड्राइव ड्राइवर ने पैसेंजर को, खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया और उसको अपार्टमेंट में उसके पीछे आगे किया, वो भी इसी गैंग मेंबर्स की तरफ से जो है वो निकला। जो उसमें मुद्दइया थी वो भी इसी गैंग से ताल्लुक़ रखती है, और उसके डिटेल्स जब हमने ली तो वो इसी तरह से है कि एक पीछे जो इनका हैंडलर था उसके कहने पे इन ड्राइव ड्राइवर जो था
वो ऑफलाइन था अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में। वो राब्ते में आ जाता है इस खातून मेंबर के साथ, और उसके बाद उसको वो ले जाते हैं अपने इस इलाके में जो हाइड आउट इनका था जहाँ पे ये एक्ट कमिट करते हैं। चुंगी मरसदू के इलाके से उसको पिक करने के बाद वो मुदैया जो है वो ले जाती है। केस की ये मुदैया थे, लेकिन अभी हमें पता चल चुका है कि ये गैंग मेंबर ही है, और वहाँ पे ये एक्ट कमिट करवाते हैं। और एक्ट कमिट करवाने के बाद उसको खुद ही यानी इनवाइट करती है अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में कि अपार्टमेंट में जहाँ पे उसकी दूसरी खातून साथी मौजूद होती है, इतला ये दे देते हैं अपने बाकी मर्द अरकान जो हैं मेंबर गैंग के, उनको इतला देते हैं, और फ़ौरन ही वो टाइमली वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पहुँच के जो है उसको ब्लैकमेल भी करते हैं, उसकी वीडियो भी बना लेते हैं। उसके बाद उसके एक फ़ोन है वो उसका ले लेते हैं, और वीडियोस हैं उसमें इस तरह से वो रिकॉर्ड कराते हैं कि जिसमें उसको फोर्स करते हैं कि वो माने अपना गिल्ट, और ये चीज़ जो है वो इंसिडेंट इसी तरह से करके उससे जो है पैसे लेने की कोशिश इसमें करते हैं। हनी ट्रैप केस जो सॉल्व किया पुलिस की जानिब से, जिन्होंने इस केस को सॉल्व किया और बड़ा मशहूर और मकबूल हुआ कि एक इन ड्राइव पे गाड़ी चलाने वाले नौजवान ने एक ख़ातून के साथ ज़्यादती की और उसके बाद उस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। लेकिन पता ये चला इन्वेस्टिगेशन के बाद कि जो मुलजिम था वो असल में मज़लूम था। वो अपनी FIR के लिए भी वहाँ पे जाता रहा थाने में, लेकिन किसी वजह से उसका मुकदमा भी दर्ज ना हो सका और ना ही पुलिस ने उसके कहने पे किसी किस्म का एक्शन लिया। लेकिन उसके अपने ख़िलाफ़ ही FIR दर्ज हो जाती है 376 की दफ़ात के तहत। लेकिन ये मामला सॉल्व कैसे हुआ, सफदर साहब हैं हमारे पास, इंस्पेक्टर हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसे हुआ। इस केस की IO हैं, दूसरे IO हैं, इन दोनों से भी जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कैसे सॉल्व हुआ। अगर ज़्यादती केस की FIR हो जाए तो अमूमन इसको एक तरफ़ा ही ज़्यादा समझा जाता है कि ज़्यादती तो की होगी, कुछ ना कुछ तो किया होगा, लेकिन ये फिर बहुत सारे लोग इसमें हनी ट्रैप होते रहे, बल्कि एक गिरोह जो है वो आपने गिरफ़्तार किया। इसकी थोड़ी तफसील बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास FIR होती है सब्ज़ादार में 1 अगस्त को 30-20, फिर दूसरे 2 अगस्त को फिर FIR होती है 30-35। जब हमने देखा फिर ये एक ही इसमें वाजफा है, तो फिर हमने सर्च किया इसका ID, जो रोज फातिमा थी उसका अपना ID नहीं था, उसकी वादा था, उसने कहा मेरा नहीं बना हुआ। उसकी वादा का जब हमने ID सर्च किया तो उसके काफ़ी मुकदमे थे। किसी में वो 376 में कहीं मदैया है, कहीं 365 में मदैया है, कहीं वो मुल्ज़मा भी है। साइड वालों एक मुकदमा होता है इनके खिलाफ 420, 68, 419, 399, 371 भी और 109। अच्छा, इसका इनका जो मुदैया थी, इसकी वालदा का ID कार्ड आपके पास था और उस ID कार्ड को आपने देखा तो उसमें रिकॉर्ड निकला कि कई मुकदमात में वो मुलजिम है और मुदैया भी है। FIR में उसने अपनी वालदा का नंबर दिया हुआ था ना, शनाख्ती कार्ड का। ठीक है। उससे फिर IO जो हमारी है, फिर हमारा ये सब इंस्पेक्टर है, ये इसका हमदर्दी लगाया, इस पर हमने काम किया है। ठीक है। तो फिर आस्ता आस्ता हमने SP साहब ने हमें ये टारगेट दिया कि ये आपका हम उनको 2-4 दिन हमें दें, इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। और उसमें आप कामयाब भी हो गए? वो फिर हम कामयाब हो गए। फिर हमने अपने SP साहब को बताया, हम कामयाब हो गए। ठीक है, ये माइक ज़रा दीजिएगा। अच्छा आप मैडम आप बताइएगा कि इन ड्राइव का जो मुलजिम आपके लिए यकीनन उसकी FIR हो गई थी, तो ये तो कहता रहा थाने में कि उसको जो है वो गन पॉइंट पे उससे ज़्यादती करवाई गई या जो भी मामला था, फिर आपने इसको केस को कैसे लिया और फिर ये मुलजिम मजलूम कैसे बना? देखिए, जब हमारे पास FIR आती है तो तफ्तीश का असल में मकसद ये होता है कि तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है जो सच है उसको सच ही लिखा जाए और जो झूठ है उसको झूठ ही लिखा जाए। ठीक है। जब ये केस हमारे पास रिपोर्ट हुआ तो उससे एक दिन बाद ही जिसकी मुद्दत में रिपोर्ट हुआ वो अरूज फातिमा है। ठीक है। उसने जिससे ID कार्ड पे ये FIR दर्ज करवाई थी, क्योंकि हमारे पास जब भी इस तरह केसेस आते हैं तो हम पहले उनका CRO रिकॉर्ड चेक करवाते हैं। ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरह हमने इस पर भी चेक करवाया और उन पे काफ़ी ज़्यादा वो पर्चों में कुछ में नामजद थे, कुछ में वो मुद्दई बने हुए थे। इसी तरह जब रिकॉर्ड चेक किया गया बिल्कुल इसके मतलब सेम मतलब नेक्स्ट डे जो है एक और FIR दर्ज होती है।
उसमें भी जो मुद्दई है और उसमें भी जो विक्टिम है, जब इन दोनों को हमने देखा गया और उसमें जो गवाहान है, दोनों केसेस में गवाहान सेम थे। ठीक है। लेकिन दूसरे जो एफआईआर है उसमें उन्होंने गवाहान का नाम, जो बीबी उसमें शामिल है, जो औरत मतलब शामिल है, उसका नाम उसने ठीक बता दिया, लेकिन जो मेल था उसके अंदर गवाह उसका नाम उसने हमें गलत बताया। लेकिन जब हमने उनका एड्रेस वगैरह देखा कि गवाह एक मुद्दई और ये जो गवाह है उनका एड्रेस सेम है, तो यकीनन एक दूसरे को ही जानते होंगे। ठीक है। हमें वहाँ से शुबा हुआ कि ये एक ग्रोह हो सकता है जो कि ऐसे पर्चे करवाता है, और फिर हमारे पास रिकॉर्ड भी निकल आया था। ठीक है। फिर इस वजह से जो हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया और अब तमाम हक़ाइक़ सामने हैं कि ये एक झूठा पर्चा था, दोनों पर्चे ही झूठे थे। ठीक है। अच्छा, हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो इस तरह के नौसरबाज होते हैं या इस तरह के झूठे मुकदमात दर्ज करवाने वाले लोग होते हैं या ग्रोह इस तरह का होता है, तो ये कहीं ना कहीं गलती जो है वो कर देता है, और अगर इसको इन्वेस्टिगेट सही तरह से किया जाए जिस तरह आपने और आपकी टीम ने किया कि उसका सीआरओ रिकॉर्ड निकाला गया और उसमें आपको शुबा हुआ कि इस पे तो बहुत ज़्यादा इसने खुद मुकदमे में मुद्दइया भी है और इस मुलजमा भी है, तो फिर उससे ये इस मुलजम को जिसके खिलाफ इन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज कराया था वो मजलूम साबित हुआ। कोई इस हवाले से आपको मैसेज दे सकती हैं कि लोग तो शायद अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने वक़ार के लिए सामने ही नहीं आते हैं और इस तरह के ग्रोह से वो जो है वो ब्लैकमेल होते हैं? देखिए, पुलिस का मकसद ही जो है हर किसी को के साथ ताउन करना है, तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है। अगर ऐसे लोग टाइमली रिपोर्ट कर दें, ठीक है, आके शामिल तफ्तीश हो जाए, बजाय इसकी कि वो हमसे छुपें कि पुलिस पता नहीं हमारे साथ क्या कर देगी, तशद्दुद करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए तफ्तीश की जाती है। आके रिपोर्ट करें, जब जिनके साथ भी ऐसे मामलात हो रहे हैं वो आके रिपोर्ट करें, ताकि जो है तफ्तीश को ना एक अच्छे एंगल, अच्छे पहलू से मतलब की जाए, और जो सच है उसको सच ही लिखा जाए, झूठ को झूठ ही लिखा जाए। ठीक है, इनको दीजिएगा माइक। अच्छा जी, आप बताइएगा कि आपने कौन से केस की तफ्तीश की, फिर कड़ियाँ जुड़ी कि ये एक ही गिरोह है? असल में ये दोनों केसेस हमारे, हम कुलीग हैं आपस में, एक ही जगह पे इंचार्ज है सर्कल सब्ज़ार की, और हम भी उधर ही बैठते हैं। तो जब ये केस हमारे पास इन ड्राइवल आया, तो बल्कि ये केस स्टार्ट होने से पहले ही मीडिया पे रिपोर्ट हो चुका था। बिल्कुल ठीक है, और प्रेशर भी होगा पुलिस पे। प्रेशर हमारे अफसरान वाला हमसे कहें कि ये क्या मामला, भी जल्दी इसको देखो, ये मुलज़म को गिरफ़्तार करें, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि प्रेशर था। जब मुलज़म से मैंने रब्ता किया और उसको टच किया, उसको मैंने एतमाद में लिया, भाई मेरे वो बात आपकी सच है कि लोग सामने नहीं आते डर के मारे कि हम लोग जब पर्चा उधर, इसको मैंने एतमाद में लिया कि भाई मेरी बात सुने, आपके टेलीफोनिकली पहले मैंने इससे पूछा हुआ कि आपके साथ, उसने मुझे सारी डिटेल बताई, मेरे साथ तो जुल्म हुआ, ये जाती हुई। तो मैंने कहा फिर आप छुप क्यों रहे, सामने आओ ताकि मैं इसकी इंटरोगेशन कर सकूँ हम सारी। वो जब वो उसको एतमाद में लेके, खैर उसने फिर भी उसने बुरी ज़मानत करा के आया, फिर भी जो है ना वो ऐसे नहीं आया, बेल बिफोर अरेस्ट कराई उसने, मैं कोई बात नहीं, बेल करवा के आ जाए। वो जब उसने सारी बात बताई तो मैंने अपने जज साहब को बताई, अपने अफसरान बाला को बताई कि सर ये है कि मीन वाइल दूसरी अफेयर भी होगी। वो हमने उसका मुआवजा किया कि ये उसमें गवाह एक ही हैं, और जो मुद्दई उसका आईडी कार्ड लिखा हुआ है और उसका वो उसकी वालदा का उसका रिकॉर्ड याफ्ता है। तो अब इसको थोड़ा सा इनको डेरिवेट करें तो इंशाल्लाह ये तो गैंग है, ये तो लोगों को इस तरह हानि ट्रैप करके बुला के तो लूट लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने जज साहब से बात की, इन्होंने अफसरान वाला से इजाज़त ली, और क्या हमें थोड़ी सी इजाज़त दें, थोड़ा सा हमें इंटेरोगेट करें इसको, इंटेरोगेट, ताकि मुद्दइयों की उमूमन ऐसा होता नहीं ना कि इसमें ना होने की वजह से भी, ट्रेस होने की ना वजह भी यही है कि वो जो है ना जो मुद्दई है उसको इंटेरोगेट ही नहीं किया जा सकता। वो प्रेशराइज करते हैं, मीडिया पे चले जाते हैं, कभी हम ये अफसरान के पेश हो गए, देखें ब्लैकमेल का दूसरी पार्टी के साथ मिल गया जी। वो इस तरह के जो है ना इल्ज़ाम लगाते हैं पुलिस पे, जिसकी वजह से पुलिस कहती है उसका रुख एक ही तरफ चला जाता है। लेकिन हमने इसको अपने अफसरान को बताया कि जनाब ये इन्वेस्टिगेशन जो है ना, इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने वाली है, ये इस तरह ये गैंग है, ये लोगों को इस तरह ट्रैप करके तो ये लूट रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, गो थ्रू हमें दिया, तो हमने इनको इंटेरोगेट किया, बिठा के थोड़ा सा इंटरव्यू किया, तो वो ब्रेक हो गया उनके, हाँ जी ये हमसे ऐसा हुआ है। तो फिर हमने प्रॉपर तरीके से फिर एक दो, अब आपके पास ग्रोह के कितने लोग हैं? ये 8 मेंबर हमने गिरफ्तार कर लिए। खवातीन इसमें कितनी? 4 खवातीन हैं और 4 ही मर्द हैं। 4 हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद एक रह गया सर, एक रह गया। अच्छा, तो इंशाल्लाह उसको भी हम ट्रेस कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो गया। पुलिस का ऊपर आवाम का एतमाद नहीं है कि पुलिस की जानिब से यकीनन कुछ कोताहियाँ, कुछ गफलतें पुलिस की जानिब से होती हैं,
लेकिन अगर हम इस केस की बात करें तो ये इंतहाई हसास नौइयत का केस था, जिसमें पुलिस ने अपनी जहानत से और अपनी बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन से इस केस को सॉल्व किया। हालांकि लोगों का तासुर यही है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी सारी गलतियां और कोताहियां छोड़ देती है, और ये तासुर किसी हद तक ठीक भी है। लेकिन इस केस में पुलिस ने वाकई ही काबिल तारीफ़ काम किया। इसमें एसपी से लेके आईओ तक जितने भी लोग हैं, जितने भी इस टीम के लोग हैं, ये काबिल सताइश इनका काम था कि ऐसे लोगों को गिरफ़्तार किया जो मासूम लोगों को किसी न किसी तरह से ट्रैप करके, चाहे वो हनी ट्रैप था, चाहे वो वरगलाना था, चाहे वो नौसरबाजी थी, और उनसे लाखों रुपए की रकम जो थी वो बटोरते थे और उनको मुलजिम यानी कि रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम भी बनवा देते थे। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हनी ट्रैप करने वाला गिरोह पुलिस ने बिल आखिर गिरफ्तार कर लिया। इन ड्राइव का ड्राइवर जो एफआईआर के मुताबिक मुलजिम था, कैसे मजलूम बना, ये सब कुछ हमने आपको दिखाया आज के इस प्रोग्राम में। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।